Hello dear students, how are you all? बच्चों ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ 4 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਯਾਨੀ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਯੌਗਿਕ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 4 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਸਟਾਈਲ ਨੇਚਰ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜਕ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਲੰਬੀਆਂ ਚੇਨਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ठीक है। और उस तो बाद और ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਤਰੀ ਸਮੰਗਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਆਈਜ਼ੋਮਰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 4 ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 74 ਐਂਡ 75 ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕਾਰਬਨ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯੌਗਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਰੂਲਸ ਨੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਨਿਯਮ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ 4 ਰੂਲਸ ਮੇਨ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਇਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਰਬਨ 1 ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਸ ਯੌਗਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਥ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਅਗਰ 2 ਲੱਗੇ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਥ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਕਾਰਬਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। 4 ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਬਿਊਟ, 5 ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਪੈਂਟ, सॉरी इतने पेंट आएगा जी, पेंट पढ़ांगे। 6 कार्बन लगे ने तो हैक्स पढ़ांगे। इस तरह 7 लगे ने हैप्ट, 8 लगे ने ऑक्ट, 9 लगे ने नॉन, नोनेन होंदा ना इस तरह नॉन और 10 लगे ने ते डेक पढ़ांगे। सो ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ 5 ਤੱਕ ਹੀ ਨੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ 6 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਆ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ 6 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯਰ ਸਿਲੇਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਕਸ ਤੱਕ ਸੋ 1 ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਮਿਥ, 2 ਨੂੰ ਈਥ, 3 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪ, 4 ਨੂੰ ਬਿਊਟ, 5 ਨੂੰ ਪੈਂਟ ਐਂਡ 6 ਨੂੰ ਹੈਗਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟ ਨੇਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ 2 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਇਨ ਏ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਮੂਹ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਯੌਗਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਅਗੇਤਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛੇਤਰ ਯਾਨੀ ਐਜ਼ ਸਫਿਕਸ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਰਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਪਿਛੇਤਰ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਕਿਹਨੂੰ? ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੀਸਰਾ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛੇਤਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਈ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਾਰਬਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮਿਥੇਨ, ਇਥੇਨ, ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਅਸੀਂ ਅਲਕੇਨ ਫੈਮਿਲੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਨੇ ਪ੍ਰੋਪੇਨ, PROPANE ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਈ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇਗਾ ऑब्वियस है ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਈ ਇੱਕ ਈ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਈ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ PROPAN ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਪਲਸ ONE ਓਨ। ਓਨ ਫੈਮਿਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟੋਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਜੋ ਈ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਪਲਸ ਓਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੋਪੇਨੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਓਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਪਿਛੇਤਰ 'ਚ ਤੇ ਓਲ ਵੀ ਪਿਛੇਤਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਈ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ठीक है। अगेतर ਦੇ यूज़ ਵਿੱਚ अगर ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਫਿਕਸ ਦੇ ਵਜੋਂ यूज़ ਕਰਦੇ अगर फंक्शन ग्रुप ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਿੰਗ नहीं ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ एग्जांपल्स ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो रूल नंबर 4 कहता फॉर अनसैचुरेटेड कार्बन सीरीज, अनसैचुरेटेड होंदा बेटा जिहड़े डबल बॉन्ड हो गए, ट्रिपल बॉन्ड हो गए, सिंगल बॉन्ड तुहानूं मैं दस्सिया सीगा इकैरा बंधन वाले अल्केन हुंदे आ, अल्केन हुंदे आ, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है तो ईन की आवाज़ दिंदा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन की आवाज़ दिंदा। सो कुछ इस तरह आप जोड़ते हैं तो ये प्रोपेन होएगा सिंगल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्डिंग है तो आवाज़ देगा प्रोप प्लस इन यानी प्रोपीन। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड होएगा तो प्रोप प्लस आयन प्रोपाइन हो जाएगा। सो आओ कुछ ये रूल्स के अकॉर्डिंग आप कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिन्होंने तो सानू ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा। सो अगे बच्चे जान तो पहला असी एक बारी जो फंक्शनल ग्रुप से उन्होंने डिस्कस कर लेने, एक बार फिर रिवाइज कर लेने जो असी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के विच। सो कुछ हाइड्रो एटम्स जो क्लोरो ब्रोरो लगे, ब्रोमीन लगे ने, क्लोरीन या ब्रोमीन लगे ने, तो उन्होंने एज क्लोरो ब्रोमो यूज़ करांगे वह वर्ड, ठीक है। पर ये अगेतर विच यूज़ होएगा, अगेतर यानी अगे यूज़ होएगा, सिर्फ ए वाला असी अगे यूज़ ज़्यादातर कर लें, ठीक है। सो Cl एंड Br होएगा। अगर एल्कोहल लगा है तो OH ओदा ग्रुप होएगा, फंक्शनल ग्रुप। आवाज़ हो देगा ओल दी, ठीक है, आवाज़ ओदी एवली होनगियां ओल दी, पर ग्रुप OH लगा होएगा तो मैं कहना अल्कोहल लगे। अगर C डबल बॉन्ड O तो H लगा, डैट मीनस कि वो अल्डिहाइड लगा होएगा और अल दी आवाज़ देगा। इसी तरह कीटोन लगा आगे ग्रुप तो C डबल बॉन्ड O लगा होएगा, ओन दी आवाज़ देगा। कार्बोक्सिलिक तेजाब जड़े ने एसिड जड़े ने ओदा COOH हुंदा आ और वो आवाज़ जिहड़ी दिंदा है ओइक एसिड दी आवाज़ दिंदा है। कुछ ना क्रियात्मक समूह ने और यह उन्होंने कुछ फॉर्मूलाज ने तुहाडी बुक दे 75 पेज के उत्ते भी काफ़ी हद तक इन्होंने फिर डिटेल दे विच दस्सिया गया है, एग्जाम्पल्स ने सारियां। और जिहड़े फंक्शनल ग्रुप्स ने वो थोड़े 73 पेज के उत्ते सी जो असी पहले कर चुके हैं, ठीक है। सो इन्हां नाल रिगार्डिंग असी कुछ एग्जाम्पल्स हुण करते हैं। सो बच्चों असी कुछ जो एग्जाम्पल्स ने वो शुरू करते हैं। असी मैं इतने पहले एक यौगिक बना रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ C एंड Cl, ठीक है, क्लोरीन लगाया। बाकी सानू सब तो पहला जरूरी ने कि उसते सारे हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कर दी है, क्योंकि हर कार्बन के 4 कंप्लीट होने जरूरी होंगे ने। सो हर हाइड्रोजन मतलब कार्बन के हाइड्रोजन बॉन्डिंग असी कंप्लीट कर दी है। उस तो बाद असी देखते हैं कि इनू केड़ा जिहड़ा फंक्शन ग्रुप लगा होया। सो इनू फंक्शन ग्रुप लगा होया बेटा क्लोरीन, यानी असी इत्थे भी नाल साइड ते रख देना ताकि ईजिली सानू दिखाई भी दे जाए। सो क्लोरो असी इन्हें यूज़ कर रहे हैं क्लोरो, यानी असी इहदा नाम लिखेंगे CHLORO क्लोरो, ठीक है। नाउ रूल्स के अकॉर्डिंग बेटा गल करिए, इस दे अकॉर्डिंग अगर असी गल करिए ना, फर्स्ट रूल कहता है कार्बन एटम्स की नंबरिंग करनी है, ठीक है। सो नंबरिंग कर लो तुसी, प्रॉप लगा होया इनू, ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन है और नंबरिंग हमेशा उधर करनी जितने कोई फंक्शन ग्रुप शुरू होया। सो क्लोरीन इधर लगा 1 2 3, 3 कार्बन है, सो ये बन जाएगा प्रॉप, ठीक है। सिंगल बॉन्डिंग है सारे कार्बन के विच आपस च, सो एन की आवाज़ आएगी। सो यह की हो गया क्लोरो प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। सो एक होर एग्जाम्पल दे रही हूँ, ओ की कह रही हूँ CnCbr, ठीक है। सो असी पहले हाइड्रोजन फिनिश कर दिए। नाउ केड़ा ग्रुप लगा, राइट ब्रोमीन लगा, तो मैं इन्हू पढ़ांगी ब्रोमो। क्लोरो ते ब्रोमो जिहड़े ए ग्रुप ने हैलो ग्रुप्स ने, ये ज़्यादातर अगेतर विच लगते हैं, सफिक्स के वजों यूज़ ऑलमोस्ट करते हैं आप ज़्यादातर, ठीक है ना। तो ब्रोमो हो गया। सो काउंटिंग करांगे तो 1 एंड 2, देखो केड़ा लगा ये मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, 2 लगे तो इथ की आवाज़ देगा। सो ये आ जाएगा ब्रोमो इथ और राइट केड़ा लगा होया जी। सो एन सिंगल बॉन्ड है, सो एन ब्रोमो इथेन इसका यौगिक का नाम है। सो क्लीयर हो रहा बेटा। अगली जो एग्जाम्पल है थोड़ी बुक के अकॉर्डिंग वो ने असी देखते हैं किसी होर दे नाल, राइट अल्कोहल दे नाल कोई एग्जाम्पल उन्हें ले ली हुई है।
ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨੇ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਚੇਂजेस ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ OH ਗਰੁੱਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, OH ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਅਲਕੋਹਲ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ H ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੀ, ਜਿਹੜੇ 3-4 ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਅਲਕੋਹਲ ਲੱਗਾ 1 2 3 ਐਂਡ 4 ਲੱਗਾ, ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਕੌਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, 4 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 4 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਿਊਟ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਿਊਟੇਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਿਊਟੇਨ। ਨਾउ ਬਿਊਟੇਨ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਬਿਊਟੇਨ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ, ਬਿਊਟੇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਈ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਾइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप लगा है और अल्कोहल की आवाज़ किद्दां आती है, ओल, राइट। सो ये मेरा बन जाएगा ब्यूटेन ओल, ब्यूटेनॉल, ठीक है। सो ये मेरा बन गया ब्यूटेनॉल। क्लीयर है सारे नू? ओके जी। सो अगे चलते हैं। सो बच्चे अगे साढ़े कोल एक होर असीं ड्रॉ कर लेने आ, ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੀ। ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, C and C, ठीक है। और ਅਸੀਂ OH, ओके, और C। नाउ कंप्लीट करो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ठीक है जी। सो कंप्लीट कर दिते। नाउ काउंट करो, इधरों काउंट करांगी 1 2 3 4, इधर करांगी 1 2 3 4, मतलब कोशिश करनी है नंबरिंग हमेशा उधरों करो जिथे वो लगा होया ग्रुप। सो इतने 2 ते लगा तो 2 वाली साइड तो ही करेंगे 1 2 3 एंड 4। सो ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਵਾਲਾ ਬਿਊਟੇਨ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ठीक है। सो ब्यूटेन लगा है, मैं इनू की कर सकते, ब्यूटेन सेम बाकी चीज़ आएगी, ब्यूटेन प्लस ओल ब्यूटेनॉल। सो 2 ब्यूटेनॉल साढ़े कोल ए वाला कंपाउंड आ गया। गया नैक्सट वाली देखते हैं साढ़े कोल की एग्जाम्पल बचती है। नैक्सट वाली अकॉर्डिंग टू योर बुक कीटोन ग्रुप है, ठीक है। सो C एंड C, ठीक है। डबल बॉन्ड O, ओके। नाउ ये भी कंप्लीट करो, ठीक है। H बॉन्डिंग्स हाले अस सिंगल कर रहे हैं, ठीक है। सो ये 1 2 3 4 ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है, चाहे तुम नंबरिंग इधरों का दो चाहे इधरों का दो, डजन मैटर, क्योंकि सेंटर च ही लगा हुआ है। हाँ अगर एक अद्धा वध लगा होता कार्बन फिर असी नंबरिंग काउंट करनी सी। नाउ मेरे को की है इत्थे 3 कार्बन के अकॉर्डिंग साढ़े कोल की आंदा, प्रॉप यूज़ कर रहा हो तुहाडी बुक दे उत्ते, तो प्रॉप, ठीक है। प्रॉप एन वाली आनी है, ठीक है। बट इत्थे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शन ग्रुप तो एक बार देख लिए, फंक्शन ग्रुप के अकॉर्डिंग साढ़े कोल देखो तुसी ए वाली पोजीशन आती पे, दैट मीनस कीटोन ग्रुप लगा तो आवाज़ पिछे ओन वाली देनी है। सो इसका मतलब इत्थे ओन की आवाज़ आएगी ONE, प्रोपेनोन, ठीक है। सो ये मेरे को आ जाएगा प्रोपेनोन, क्लीयर। सो ये अगर अस एक होर एग्जाम्पल करिए यदि तो वो कुछ की होएगी, ठीक है। और अस देख लेने। सो तुसी ऊपर देख सकते हो असी एग्जाम्पल कर रहे हैं सेम कीटोन ग्रुप नू लैके। ध्यान देना कि सारे ने कार्बन दे हैच नहीं लगा देना, क्योंकि ये नहीं लगेगा, ऑलरेडी 4 कंप्लीटेड ने। सो ना काउंट करो 1 2 3 4। सो 1 2 3 4। सो ये क्या आ जाएगा, राइट, ब्यूटेन ब्यूटेनोन। सो ये तुहाडे कोल आ जाएगा ब्यूटेनोन, क्लीयर। सो ये अपने कोल ब्यूटेनोन आ जाएगा। सो नैक्सट आती है बच्चे सो नैक्सट चलते हैं असी। नैक्सट मेरे को है कार्बोक्सिलिक तेजाब का जो ग्रुप है
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ COOH ਵੀ ਹੁੰਦਾ, C ਡਬਲ ਬੌਂਡ OH ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯਰ ਬੁੱਕ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ C ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ OH ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬੌਂਡਸ ਨੇ 1 2 3 ਰਾਈਟ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ठीक है। बाकी फिनिश्ड ने। सो ये मेरे को की हैगा काउंटिंग इधर शुरू करांगे 1 2 3 ऑलरेडी है फर्स्ट ते लगा होया COOH जे ए ना लगा होंदा ते मेरा अल्कोहल होंदा, ठीक है। और ये लगा होया दैट मीन COOH लगा होया, अगर एदी जगह COOH भी वो लिख सकदा सी। सो 1 2 3 प्रोपेन, ठीक है। प्रोप तुहानू याद आ प्रोपेन आ, ई नहीं लगाना पिछे, ठीक है ना। प्रोपेन होएगा, मैं वैसे लगा के दिखा देनी हाँ। सो असी ਇਹਦਾ ई नहीं लगावांगे, कैंसल कर देंगे। प्लस तुहानू की सिखाया सी ओइक, प्लस ओइक एसिड, एसिड भी वर्ड लिखना जरूरी है। सो ये मेरे को बन जाएगा प्रोपेन ओइक, प्रोपेनोइक एसिड, आवाज आएगी प्रोपेनोइक एसिड की, ठीक है। सो एक होर एग्जाम्पल कर लेने यदि C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। कंप्लीट कर दिया दे बॉन्ड्स। नाउ एक ही आ जाएगा मेरे को, काउंट करो 1 and 2, इथ दी आवाज देगा, ठीक है ना, सेकेंड वाला इथ। सो इथ, ठीक है। सो इथेन, ई नहीं लगाना असी, ए नहीं लगावांगे, प्लस ओइक, ओइक की एसिड। सो ए मेरे को की आएगा राइट, ये मेरे को बन गया इथेनोइक एसिड। सो मेरे को इथेनोइक एसिड आ जाएगा बेटा। और इथेनोइक एसिड जिहड़ा हुंदा है उहनूं असीं पंजाबी दे विच सिरका भी बोलदे आ, और इंग्लिश दे विच असीं उहनूं विनेगर भी बोल दिंदे आ, जिहड़ा असीं आम घरां दे विच वरतदे आ, और उहनूं असीं ज़्यादातर एसिटिक एसिड भी बोलदे आ। नॉर्मल जो दा जनरल नेम आ वो एसिटिक एसिड आ, सिरका यानी विनेगर, और उन्होंने असीं इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। इसनूं बच्चे असीं एक होर फॉर्मूले की तरह भी लिख सकते हैं। तुहानूं दस्सिया देखो CH3, ठीक है, CH3 और COOH, अगर कई बार आ जाता है फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड की होंगे CH3COOH। इस तरह इनू लिखना होए C, इनू नहीं असी काउंट करना C दे नाल, C2, ठीक है, हो जाएगा C2H किन्ने ने सिर्फ इन्हों के काउंट करने 1 2 3 4 5, ठीक है, और COOH। क्लीयर है जी। सो ये प्रोपेनोइक एसिड हो गया। एक बच्चे चीज़ याद रखनी है तुसी, एक चीज़ बच्चे तुसी याद ये रखनी है कि जेड़े देखो मैं तुहानूं समझा देवां, इत्थे CH3 लगा होया है वाला, तो इत्थे C2H5 लगा होया। वैसे CH4 का तुसी फॉर्मूला कीता होया, ठीक है। सो CH4 जिहड़ा वो हुंदा मीथेन, ठीक है, ये मीथेन हुंदा। पर जे इस मीथेन दे विचों एक कार्बन निकल जा सॉरी एक हाइड्रोजन निकल जाए तो CH3 बन गया। जो CH3 हुंदा वो केड़ा ग्रुप आंदा आ, वो मिथाइल बन जाता। इस तरह C2H6 जिहड़ा हुंदा वो हुंदा ईथेन, और अगर ईथेन दे विचों एक हाइड्रोजन निकाल दिता जाए तो C2H5 हो जाएगा, तो वह हुंदा आ इथाइल, आयल की आवाज़ दिंदा हमेशा। इस तरह प्रोपेन जिहड़ा होएगा, ठीक है। सो प्रोपेन जिहड़ा होएगा वो होएगा C3H6 ते ओहदे विच सॉरी H8, ठीक है। सो ओहदे विच एक निकाल दो H तो प्रोपाइल ग्रुप बन जाएगा। सो इनू आपां इथाइल वर्ड मिथाइल वर्ड के नाल नाल भी जानते हैं, ठीक है। सो इस तरह कई बारी तुहानूं मैं एदा भी दस देवां क्लोरोप्रोपेन आ, ठीक है। सो इस तरह भी हो सकता वा C3H किन्ने 1 2 3 4 5 6 7 C3H7 Cl लगा होया। सो बच्चे अगे भी इस तरह ही हो जाता है, जिमें इत्थे अगर देखिए तो हो सकता वा C2H 1 2 3 4 5 एंड Br, ठीक है। सो इनू मैं इथाइल ब्रोमीन भी कह सकती हाँ, इथाइल ब्रोमीन भी कह सकती हूँ, बट ज़्यादातर ब्रोमोइथेन वर्ड अस यूज़ करते हैं, बट ये इथाइल ब्रोमीन भी हो सकता है। इस तरह प्रोपाइल क्लोरीन भी हो सकता है। सो ए भी अगर मैं गल करा 1 2 3 4 है, 4 कार्बन है।
सो 4 and 9, ठीक है ना। सो H9 एंड OH लगा होया सैपरेटली उन्होंने लिखना होंगे। सो ए मेरा, ठीक है, सो ए मेरा ब्यूटाइल अल्कोहल भी हो जाता है, बट मोस्टली आप ज़्यादातर उन्होंने उदा नहीं लिखते। सो ब्यूटेनोल। सो क्लीयर हो गया तो सारा इनू कि किवें असीं लिखते हैं सारा कुछ। सो साडे कोल अज जिहड़े असीं नॉमनक्लेचर कीते ने इन्हां दे नाल एक बेटा सच असी रह गया, असी वो भी फिनिश कर लेंगे। साडा जिहड़ा डबल बॉन्ड ते साडा जिहड़ा ट्रिपल बॉन्ड दा, ठीक है। सो उन्होंने करन दे लई असी की करते हैं, असी एग्जाम्पल लेने इन फैमिली वाली, ठीक है। सो देखो सी एंड डबल बॉन्ड सी, ठीक है। मान लो इस तरह का तुहाडी बुक दे विच गिवन है 75 पेज उत्ते। नाउ कंप्लीट 1 2 3 4 ये कंप्लीट है, ये 2 लगाने पैणगे सानू, राइट। सो नंबरिंग करो। सो दिस इज 1 2 and 3 काउंट करो। फर्स्ट से लगा है इन ग्रुप लगा ना। so, पहले प्रोपेन तो मैं ये दस देवां कि प्रोपेन आ, बट ये जो डबल बॉन्ड है वो लगा हुआ है। सो ई माइनस हो जाएगा, ये कट्टे आ जाएगा, ठीक है। सो के लगाना आपा इन प्रो, सॉरी ए सारा कैंसल आउट हो जाएगा, एन पूरे का पूरा ही कैंसल आउट हो जाएगा। सो इन लगा है, सो मेरा नाम बन जाएगा प्रॉप इन, ठीक है जी। सो प्रॉप इन। और क्लियर, मान लो मेरे को यह चीज़ है इस तरह, ठीक है, और इत्थे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, ठीक है। मैं इनू कंप्लीट करने लिए CH3 भी लगा दा, और इनू कंप्लीट करने 1 2 3 एक H लगाना है, एक H 1 2 3 है, एक H इत्थे और CH3 असी इस तरह भी लिख सकते कंपाउंड्स नू, ठीक है जी। सो नंबरिंग करो, मैं इधरों ही कर देनी 1 2 3 and 4। सो ए डबल बॉन्ड लगा हुआ है, दैट मीन्स इन फैमिली आएगी। 4 लग गया तो ब्यूटेन, ठीक है। सो BUTANE ब्यूटेन, ए नहीं यूज़ करना असी, प्लस ये जगह इन आ जाएगा। सो ए असी निकाल देवांगे, माइनस कर देवांगे। सो मेरे को हो जाएगा, ठीक है। सो मेरे को आ जाएगा ब्यूटीन, बट एक चीज़ याद रखनी है, ये हुण 1 नंबर ते नहीं लगा होया डबल बॉन्ड, 2 नंबर ते लगा है, ठीक है। सो इसका मतलब ये मेरे को 2 ब्यूटीन हो जाएगा, या मैं इनू लिख सकती हाँ ब्यूट 2 इन, ठीक है। सो असी इस तरीके नाल भी इनू लिख सकते हैं। सो नैक्सट मेरे को जो एग्जाम्पल थोड़ी बुक के अकॉर्डिंग है बेटा वो आइन फैमिली के नाल है, ठीक है जी। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एच इत्थे लगा देने बिकॉज कंप्लीट करना 1 2 3 and 4। इधर करना 1 2 3 4 ऑलरेडी कंप्लीटेड, इधर 1 और H3। सो नंबरिंग कर दें असी 1 2 and 3। सो प्रोपेन लगा, प्रोपेन, बट तुहानू सिखाया प्रोपेन दे ए वाला कैंसल कर देना, आयन ग्रुप आ जाएगा इतने बिकॉज 3 लगे हुए ने। सो ये आ जाएगा प्रोपाइन, ठीक है। सो ट्रिपल बॉन्ड लिए इस तरह किया जाता है। इस तरह अगर विचकार होएगा तो 2 या 3 या 4 उत्ते आ जाएगा। सो ये सिर्फ नॉमनक्लेचर तुहाडी बुक के 75 पेज के अकॉर्डिंग। तो बेटा एदियां ही कुछ एग्जाम्पल्स ने तुहाडे जो पेज नंबर 76 के उत्ते ने। क्वेश्चन नंबर 5 वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुसी अपने खुद ट्राई करनिया ने, और जो तुहानू क्वेरीज लगदियां ने, प्रॉब्लम्स लगदियां ने, तुसी वो पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट सैक्शन के भी जाके पूछ सकते हो, और अपने टीचर्स के नाल भी उन्होंने डिस्कस कर सकते हो। सो आई होप कि अज का नॉमनक्लेचर का टॉपिक तुहानू चंगी तरह क्लीयर हो गया होएगा। सो अगली वीडियो के विच असीं मिलांगे कि कार्बन यौगिकां दे जो रसायनिक गुण ने जिवें बलन है, ऑक्सीकरण है, उन्हां दे बारे चर्चा करांगे। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।